on behalf of the Former Journalism Society, I would like to welcome everyone to this session. So Aman is basically our graduate as well, our former knight, and I am so glad. And I just connected him over LinkedIn, and I got to know that he's working in an advertising industry right now. So I thought, who better than one of your own, fellows to tell you about what is happening in the advertising world right now. So I would like to start by welcoming Aman, and I have already told you that most of these students are from the PR advertising, specialization. They are doing their specialization in PR advertising. I would really like you to tell them the ins and outs of the industry. But first of all, first question first, if you would like to start by telling a bit about yourself, the companies that you have been working in, and different roles that you have done over the years. Very great. Thank you very much, ma'am. I'm really honored to be a part of something that from where actually I began. And thank you for this opportunity. I would try my best to, give back as much as I can. And I have, let's say, we have a very short time here with us. But yeah, it's an honor. I would really like to thank you. I'm Aman Aziz, and I am head of client services for Rich Media INC and Flame Ad. So basically, Rich Media INC is a subsidiary of Flame Ad, and Flame Ad is a capital company here. Rich Media and Flame Ad both are basically ad servers, ad providers, ad agency. ठीक है, हम लोग creative support भी देते हैं clients को, or not only the client side but also on the agency side. Our clients range from Unilever, Procter and Gamble, Pepsi, Nestle, and a lot of them. And moving on to agency side, so Group M, Starcom, OMD, Gilby, etc., etc. So we have a very long list of clients. So the question is, when you have such long list of clientele, ठीक है, अब this is very weird कि यार how is it possible, because we know that Habib Bank or Faisal Bank, that जो कि हमारे भी client हैं, they are already clients of Group M, but Group M की वो किस capacity में clients हैं, that matters. ठीक है, Group M is a media buying agency, ठीक है, but in what capacity as well. ठीक है, Group M हमारी भी client है, Flame Ad की भी client है, Rich Media की भी client है, ठीक है. In what capacity? First we need to learn all these things कि यार आप किस advertising industry में जब आप जाते हैं, so in what capacity are you going, in what sort of an agency you are going, ठीक है. There are many sorts of agencies. We have studied it during the course of our education at Pepsi कि यार creative agency होती है, media buying agency होती है, अब और ATL, BTL, PR, activation agencies होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है. So the thing is कि जिस एजेंसी में मैं इस टाइम काम कर रहा हूँ, ठीक है, basically we are providing all these services, ठीक है. We are media buying experts as well, me too, and that's why I'm the HOD of this department, sales and marketing, as well as client services. Basically there are 3 departments under me. So the thing is कि हम लोग clients को serve कैसे करते हैं. आज basically जो topic था, that was programmatic advertising, ठीक है. So without further ado, I'll start with it that programmatic advertising actually होती क्या है, ठीक है. So let me just give you a very basic definition, ठीक है, कि basically होती क्या programmatic. So see, programmatic ad buying typically refers to the use of software to purchase digital advertising. डिजिटल एडवर्टाइजिंग से मुराद हमारी क्या है कि हम ऑनलाइन कौन कौन सा मीडिया किधर किधर परचेज करते हैं, ठीक है, और किस कैपेसिटी में परचेज करते हैं. और मीडिया से व्हेन वी टॉक अबाउट मीडिया, आई होप वी ऑल आर ऑन द पेज के यार व्हाट इज मीडिया. मीडिया इज समथिंग दैट ऑन विच वी कैन एक्सपोज आवर एड्स, ठीक है. एंड यानी कि जहाँ पे हमारा ऐड चलता है, फॉर एग्जांपल टीवी पे ऐड चलता है, फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट पे ऐड चलता है, ठीक है, इन व्हाट कैपेसिटी, वो किस तरह चलता है. जब टीवी पे ऐड चलता है, उसकी प्रोग्राम की रेटिंग्स पे डिपेंड करता है कि यार हमें ऐड का क्या रिस्पांस आ रहा है, वो हम डिफरेंट कैपेसिटीज
बट ऑन द कॉन्ट्री जब हम डिजिटल की बात करते हैं, फर्स्ट लेट मी डिवाइड डिजिटल इनटू टू सेक्शंस, एक तो वॉल गार्डन और एक ओपन वेब. When I say wall garden, I talk about Facebook, I talk about Instagram, I talk about YouTube, I talk about every XYZ social media platform that we are using. ठीक है. अब उनको हम वॉल गार्डन क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस. वो उसके अंदर मैं डिटेल में चले जाऊंगा तो शायद टाइम निकल जाएगा. बट ओपन वेब इज समथिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल एनी वेबसाइट, जियो की वेबसाइट, जंग की वेबसाइट, ठीक है, ARY की वेबसाइट, ठीक है, दुनिया की वेबसाइट, शौकत खानम की वेबसाइट, एटसेट्रा, जहाँ विजिटर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फ्रीक्वेंट यूजर्स उनके जो हैं विजिटर्स बहुत ज़्यादा है उन वेबसाइट्स के. तो वो वेबसाइट्स करती ये हैं कि वो इम्प्रेशंस बेचती हैं. ठीक है. इम्प्रेशंस वो किस तरह बेचती हैं कि वो एजेंसीज को कहती हैं जो एडवर्टाइजर्स होते हैं. ठीक है. एडवर्टाइजर, इसमें मैं दो कैटेगरीज को कहूंगा. एडवर्टाइजर इज समवन हु एक्चुअली एडवर्टाइजेस, दैट कैन बी अ कंपनी, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोका कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यूनिलीवर. एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज समवन हु डज दैट फॉर एन एडवर्टाइजर. ठीक है. वी बाय मीडिया फॉर देम. अच्छा, वो ये काम डायरेक्टली भी करते हैं, ठीक है, फ्रॉम पब्लिशर्स. अब स्टार्टिंग में होता ये था कि जब ये सारी सिचुएशन नहीं थी तो यहाँ पे पब्लिशर था, यहाँ पे एडवर्टाइजर था. ठीक है. और वो होता ये था कि ये वेबसाइट जो थी वो एडवर्टाइजर को कांटेक्ट करती थी कि जी कि मेरे पास इतने इंप्रेशंस हैं, ठीक है, यू कैन परचेज इट फ्रॉम मी. ठीक है. एडवर्टाइजर सिंस उसको मीडिया चाहिए होता था वो परचेज कर लेता था. ठीक है. होता क्या था कि एडवर्टाइजर को एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे. ठीक है. अब इस सारे सिस्टम को, इस फ्लॉ को दूर करने के लिए एड प्लेटफॉर्म्स जो हैं इंट्रोड्यूस किए गए. एड प्लेटफॉर्म्स ने किया ये कि वो अब इम्प्रेशंस लेता था इनसे, और फिर आगे से जो एडवर्टाइजर्स थे वो इम्प्रेशंस इनसे खरीदते थे. ठीक है. और वो हुआ क्या कि इम्प्रेशंस वो इनसे इसलिए खरीदते थे कि सम इम्प्रेशंस जो पब्लिशर थे वो मिस आउट कर जाते थे. ठीक है. फॉर एग्जांपल 10,000 इम्प्रेशन जी ज़ाया हो गए आपके. अब ज़ाया किस तरह होंगे जी? मैं किसी वेबसाइट पे जाता हूँ, नॉट नेसेसरली कि आई वॉच द एड. ठीक है. मेरे लिए वो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल दैट एड इज नॉट इंटेंडेड फॉर मी, दैट इम्प्रेशन इज वेस्ट फॉर मी. ठीक है. और मतलब मैंने उस इम्प्रेशन के लिए पे तो किया हुआ, बट दैट इम्प्रेशन इज वेस्ट फॉर मी. मैं क्यों पे करूँ उस इम्प्रेशन का? एक एडवर्टाइजर ने कहा. ठीक है. फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीजर्स बिल्ड होते रहे. ठीक है. देन केम द प्रोसीजर ऑफ प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग, जहाँ पे एक फ्लो चार्ट है. मैम, डू यू हैव द वीडियो आई शेयर विद यू? Yes, I have. I'm Ma'am, sharing can in the chat. you? Yes, ma'am. Thank you. This is a 2017 guide to the digital display market from the IAB. To understand how far we have come in the last 20 years of online display trading, we need to start from the beginning. In the beginning, an advertiser or an agency representing an advertiser would work directly with a publisher to purchase ad space on their website. This could be done on a tenancy basis, with every visitor to the website being shown the same message. Or the advertiser could purchase a share of the total impressions paid for at a cost per thousand rate. Publishers who were unable to monetize all of their available inventory would sell on their remnant impressions to ad networks, who would aggregate supply from multiple publishers and sell on packaged inventory at a discounted rate. This method became known as indirect selling, with networks acting as brokers or intermediaries for publishers. Ad networks pioneered many of the techniques that are still used today, such as building audiences to better qualify impressions. But the model also introduced inefficiencies, which ultimately led to the creation of the ad exchange model. This model gave rise to the beginnings of data management platforms. Third parties who specialized in understanding the unique characteristics of site visitors and overlaying that data at an additional cost. Sellers could make their audiences available on the exchanges, and buyers could pick and choose individual impressions. They could either bid on individual impressions through real-time bidding auctions or bulk buy inventory that met their targeting requirements regardless of the source.
Both buy-side and sell-side benefited from the trading efficiencies of this new model. Some agencies invested in their own trading desks or outsourced to independent trading desks, which would plug into entities known as demand-side platforms. They could streamline their media acquisition strategies based on their understanding of which audiences were most likely to be interested in their products or services. On the sell side, publishers made their impressions available to aggregated sell-side platforms. With rapidly increasing availability of mobile inventory, app developers started to appear alongside traditional desktop publishers. The role of the ad network diminished as they adopted this new technology, and today, only a small proportion of inventory is traded this way. Similarly, the role of the ad exchange diminished as the DSP and SSP began to interact more directly. Conversely, the importance of the data management platform in enriching the understanding of each transaction in the supply chain has increased. In recent years, we have seen the increasing importance of ad verification partners. These companies are entrusted with validating the quality of the inventory being transacted and to ensure that it originated from legitimate sources. We now find ourselves in an ecosystem where the majority of ad impressions are transacted through some degree of automation, including even the oldest model of the direct relationship between buyer and seller. None of this would have been possible without the increasing wealth of data now available to marketers and the specialization of every intermediary partner in the supply chain. With each new step in the process, digital continues to innovate and improve, keeping it the most effective way to reach and wow your audience. So the thing is कि आप जब यहाँ पे आपके पास एडवर्टाइजर होता है, यहाँ पे आपके पास पब्लिशर होता है, इन दोनों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे, पेमेंट्स के भी इश्यूज हो रहे थे, ठीक है, और डेटा के ऑथेंटिकेशन की भी बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे, ठीक है। अब हुआ ये कि जब बीच में एड एक्सचेंज सर्विस आ गए, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, अभी भी देयर वर थिंग्स, ठीक है, कुछ इंप्रेशंस अभी भी लूज हो रहे थे, ठीक है। हो ये रहा था कि फॉर एग्जांपल दोज एड्स वर नॉट इंटेंडेड फॉर मी, इंप्रेशंस जो अभी इन्होंने बात की बीच में वीडियो में सीपीएम की, ठीक है, ये था कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस जो कि एक एडवर्टाइजर पे करता है एक पब्लिशर को, ठीक है, टू फॉर द इंप्रेशंस ही और शी इज परचेजिंग, ठीक है। अब द थिंग इज कि सिंस वो वेस्ट हो रहे थे उसके इंप्रेशंस, यू नो, एडवर्टाइजर्स वर नॉट हैप्पी, दे वर लाइक यार आवर मनी इज गेटिंग वेस्टेड, ठीक है। बीच में एड एक्सचेंज आया, ठीक है, एड एक्सचेंज भी वो चीज फिल इन नहीं कर सका, आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस होने लगे, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर था डिमांड साइड प्लेटफॉर्म और दूसरी साइड पे था सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म। अब होता ये था कि और बीच में होता था एड एक्सचेंज, ठीक है। होता क्या है कि एड एक्सचेंज करता ये है कि वो एक मॉडरेटर के तौर पे सेंटर में आ जाता है, ठीक है। अभी आपने इसकी फेयर ऑफ एग्जांपल देखी कि यू नो एक्सेस जिसके पास था, ठीक है, ही वाज प्लेइंग विद द स्क्रीन, वो whoever that person was, ठीक है। तो दिस वाज द एक प्रॉब्लम थी प्राइवेसी की भी, ठीक है। यहाँ पे डेटा प्राइवेसी और बहुत सारे ना डेटा के लीक होने के खदशात बढ़ते रहे, ठीक है। कंपनीज लाइक कोका कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यूनिलीवर, वो कहते थे भाई हम लोग ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने बहुत सारी मतलब पब्लिशर्स को कहा कि जी आप ये वाला सोल्यूशन करेंगे तो देन वी विल परचेज फ्रॉम, और उसके अलावा भी जिसके नॉट, तो पब्लिशर्स वर compelled to go for softwares like that, like supply side platforms and you know demand side platforms. अब demand side platform क्या होता है? डिमांड साइड प्लेटफॉर्म को हमारी नॉर्मल जबान में, ठीक है, ये वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम लोग ऑनलाइन मीडिया परचेज करते हैं, ठीक है। और इसकी अगर आप लिटरल डेफिनेशन में चले जाएं तो मैं आपको बता देता हूँ, इट्स अ सिस्टम दैट अलाउज द बायर्स ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजर्स, यानी कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग इन्वेंटरी टू मैनेज मल्टीपल एड एक्सचेंजेस एंड डेटा एक्सचेंजेस अकाउंट्स थ्रू वन इंटरफेस, ठीक है, जहां पे रियल टाइम बिडिंग होती है। अब रियल टाइम बिडिंग में जब हम जाते हैं तो रियल टाइम बिडिंग ये होती है कि जब आप किसी वेबसाइट की ओपन करने लगते हैं ना, तो बैकग्राउंड में लाइक थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स क्या मिलियंस ऑफ बिडिंग हो रही होती है कि जी मेरा ऐड जाएगा, ठीक है। तो क्या नाम है,
होता है कि जो जिसकी सबसे अच्छी बिड होती है वो विन कर जाता है, उसका एड प्लेस हो जाता है, नजर आ जाता है। ठीक है, जब आप जब आप एयरवाई की वेबसाइट खोलते हैं, कोई भी XYZ खोलते हैं, आजकल आप डॉन की वेबसाइट खोल लें तो वहाँ पे KNN का ऐड चल रहा है, या AKFP अल खिदमत का ऐड चल रहा है। तो AKFP ने वो बिड विन करके प्लेसमेंट ली होती है। ठीक है, तो दैट इज वन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग रियल टाइम बिडिंग। ठीक है, अच्छा, सही है। सो कमिंग बैक कि अब SSP साइड प्लेटफॉर्म, सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म ये भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सेल साइड को, मतलब पब्लिशर साइड को करते हैं। इनके आप नामों को देखें, अगर डिमांड है तो डिमांड किसकी है? डिमांड है बीइंग एन एडवर्टाइजर मेरी, ठीक है, बिकॉज मुझे मार्केट करना है। ठीक है, सप्लाई कौन कर रहा है मेरी डिमांड को? पूरा कौन कर रहा है? इट्स ऑन द राइट साइड, इट्स द पब्लिशर। ठीक है, तो इन दोनों को अपने अपने रिस्पेक्टिव DSPs और SSPs के साथ जाना पड़ा। ठीक है, वेल इन द लिटरल टर्म, SSP is a technology platform to enable web publishers and digital out-of-home media owners to manage their advertising inventory. Advertising inventory क्या होती है जी? मेरे पास ये स्पेस है, ठीक है, आप जी हेडर ले लें हमारी वेबसाइट का, अच्छा जी राइट साइड पे एक बैनर है वो ले लें, ठीक है, उसके अगेंस्ट आपको इतने फीचर होंगे, अबव द फोल्ड और बिलो द फोल्ड होती हैं चीज़ें। अबव द फोल्ड इज लाइक ऑन द, जैसे आप वेबसाइट खोलते हैं तो वो टॉप वाला हिस्सा जो होता है 50% जो टॉप पे आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है विदाउट स्क्रोलिंग नीचे जाते हुए, ठीक है, वो अबव द फोल्ड होता है। जब आप स्क्रोल करके नीचे जाते हैं वो बिलो द फोल्ड होता है। ठीक है, तो अबव द फोल्ड पे और बिलो द फोल्ड पे आपके जितने भी इन्वेंट्री है ये मैनेज करते हैं सप्लाई साइड। ठीक है, वो आपको DSPs को अलाउ करते हैं कि यार हम इनसे परचेज कर लेते हैं। बीच में जो एड एक्सचेंज होती है, एड एक्सचेंज इज समथिंग जैसे गूगल की एड एक्सचेंज है, गूगल एड्स मैनेजर है, फेसबुक एड्स मैनेजर है। जो टेक्नोलॉजी मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं गूगल और फेसबुक एड्स मैनेजर यूज़ नहीं करता अनलेस इट इज़ अ वॉल गार्डन कैंपेन। ठीक है, मैं ओपन वेब पे साइजमेक यूज़ करता हूँ बाय अमेजोन। ठीक है, अमेजोन जो है उसने उसका एक सोल्यूशन है जो एड सर्वर है बेसिकली, उसका उसका नाम है साइजमेक। आप लोग लिख भी लें, ठीक है, एक्सप्लोर इट। ठीक है, इट्स वंडरफुल। वी नॉर्मल पीपल लाइक जनरली, जैसे हम गूगल एड्स मैनेजर हर बंदा उसको एक्सेस है, हर बंदे को उसकी एक्सेस है, फेसबुक एड्स मैनेजर की भी हर बंदे को एक्सेस है। साइजमेक एक ऐसा टूल है जिसकी एक्सेस इज नॉट रेडीली अवेलेबल। ठीक है, ये एजेंसीज को होती हैं जितनी भी बड़ी एजेंसीज हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ये एक्सेस सिर्फ और सिर्फ हमारी एजेंसी के पास है, यानी कि द एजेंसी आई एम वर्किंग विद। फिर हमने आगे फर्दर एक्सेसेस दिए हुए हैं ग्रुप एम को, ओगिलवी, स्टारकॉम को, ठीक है, जितनी भी एजेंसीज हैं जो मार्केटिंग कर रही हैं, ठीक है, माइंड शेयर को, और एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पे इन पाकिस्तान हम, मेरी जो एजेंसी है फ्लेम एड एंड रिच मीडिया, वी आर द सोल पार्टनर्स ऑफ अमेजोन हियर, बिकॉज ऑफिशियली अमेजोन लॉन्च नहीं हुआ, तो वी आर द वंस हु आर हैंडलिंग एवरीथिंग हियर इन पाकिस्तान। ठीक है, इंक्लूडिंग द साइजमिक टेक्नोलॉजी। हम अगर किसी को चाहिए, किसी कोई क्लाइंट ऑलरेडी इंटरनेशनली, फॉर एग्जांपल यूनिलीवर इज यूजिंग साइजमिक, ठीक है, इंटरनेशनली, दे हैव अ कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली विद अमेजोन, so we are the ones who allow the campaigns sitting in the agency or whatever agency Unilever have here in Pakistan. So that makes Unilever my client as well. ये यूनिलीवर ईमेल करता है, मैं आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट बता देता हूँ। यूनिलीवर ईमेल करता है अपनी एजेंसी को कि जी XYZ कैंपेन लॉन्च करें, लेट्स से ABC एजेंसी है, ठीक है, यूनिलीवर की, ठीक है, या नेस्ले की एक एजेंसी है जी इस टाइम, या कोई भी एक एजेंसी ले लें, ग्रुप एम ले लें। ठीक है, वो ईमेल करता है ग्रुप एम को, ग्रुप एम कैंपेन सेट करके सब कुछ करके मुझे ईमेल करता है जी प्लीज एक्सेस दे दें मुझे इस चीज़ का, इसको अलाउ कर दें। मैं यहाँ से अलाउ करता हूँ, ठीक है, एंड देन देयर कैंपेन गोज लाइव। ठीक है, जितना भी डेटा होता है मेरे पास रन टाइम में लाइव चल रहा होता है। ठीक है, एंड आई कैन लाइक बता सकता हूँ मैं उनको कि जी यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, दिस इज नॉट द राइट वे। ठीक है, इसके लिए आप दोबारा अप्रूवल लें क्लाइंट से और दोबारा क्रिएटिव्स हमें प्रोवाइड करें। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी जस्ट टेक देम लाइव। ठीक है, एंड दैट्स हाउ Unilever 2 is my client and the agency of Unilever is my client as well. So this is a very fun technology। ठीक है, और अगर आप लोग वाकई डिजिटल, कोई आप में से डिजिटल एडवर्टाइजिंग की तरफ आना चाह रहा है, ठीक है, तो दैट दिस इज द टेक्नोलॉजी यू गाइस शुड बी इन्वेस्टिंग इन राइट नाउ। ठीक है, और अगर मैं इसकी डिटेल्स में जाऊंगा तो इट विल गेट वेरी क्लटर्ड नंबर वन एंड वेरी कंफ्यूजिंग इफ इट इजंट ऑलरेडी।
ठीक है। सम मेजर DSPs उनमें इंक्लूडेड हैं। DSPs जो हैं, डिमांड साइड प्लेटफॉर्म जो मीडिया बाय करते हैं, उसमें जेंडर है, मीडिया मैथ है, द ट्रेड डेस्क है, एपनेक्सिस है, बहुत सारे हैं। ठीक है। इसी तरह गूगल के और फेसबुक के भी अपने हैं। ठीक है। डबल क्लिक में अब एड ट्रैकर्स भी आते हैं। सो इफ जितना मैं आगे जाऊंगा इट विल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। सो आई गेस लेट्स मूव टुवर्ड्स Q&As। ठीक है, जिसमें मैं आपको आपके क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी तो मैं उनको आंसर कर देता हूँ। ठीक है। मेजर टर्मिनोलॉजीज याद रख लें। CPM इज कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। ठीक है। देन देर आर अदर मॉडल, CPC कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है। एंड देन देर आर सम मोर एब्रीविएशंस इन मीडिया, जिसको जिसको इन टर्मिनोलॉजीज को हम कैटेगराइज करते हैं अंडर मीडिया मैथ। ठीक है। मीडिया मैथ भी मैं शेयर कर दूंगा अगर आप लोगों को किसी को नोट चाहिए होंगे। ठीक है। मीडिया मैथ क्या होता है? ठीक है। तो ये वो फॉर्मूलाज होते हैं जिनकी बेस पे हम लोग ये सारा सेटअप रन कर रहे हैं। ठीक है। वी कैन कैलकुलेट द इम्प्रेशंस, वी कैन कैलकुलेट द ROIs, वी कैन कैलकुलेट द वट एवर इम्प्रेशंस की गेम है। सो वी कैन कैलकुलेट ऑल द इम्प्रेशंस, नंबर ऑफ क्लिक्स। ठीक है। कॉस्ट पर क्लिक जो एक चीज होती है, ये बेसिकली सारा जो सेटअप है ये कम्स अंडर द बैनर ऑफ इसको हम कह सकते हैं PPC कैंपेन कह सकते हैं इन नॉर्मल वर्ड्स। PPC इज पे पर क्लिक। ठीक है। you only pay for the click. ठीक है। but if it is authentic or not, that is a separate debate. So questions if anybody has any. अच्छा, सो स्टूडेंट्स दोज हु हैव क्वेश्चंस, आप लोग चैट बॉक्स में लिखते जाओ एंड देन आई विल आस्क द क्वेश्चन ऑन योर बिहाफ। टू स्टार्ट विद अमान, आप मुझे पहले ये बताओ, क्योंकि देखो डिजिटल मार्केटिंग या इस तरह के कोर्सेज तो अभी ऑफर नहीं हो रहे, एटलीस्ट हमारी यूनिवर्सिटी में तो नहीं ऑफर हो रहा, ठीक है ना? बट व्हाट आर दोस की स्किल्स जो स्टूडेंट्स को सीखने चाहिए, एंड व्हाट आर द प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो इफ दे आर इफ दे डोंट हैव दोज कोर्सेज जहाँ पे वो सॉफ्टवेयर सिखाई जाए या इस तरह के स्किल्स सिखाए जाए, तो व्हाट आर द प्लेटफॉर्म जहाँ जहाँ से वो सेल्फ लर्न कर सकते हैं? सेल्फ लर्निंग के लिए मैम द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स दैट आर अवेलेबल आर नंबर 1 कोर्सेरा पे अवेलेबल हैं। सबको मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, मेक एन अकाउंट ऑन लिंक्डइन, स्टे एक्टिव ऑन लिंक्डइन। ठीक है। इट्स गुड दैट वी स्क्रॉल थ्रू सोशल मीडिया, बट इट इज बेटर दैट वी स्क्रॉल थ्रू लिंक्डइन एज वेल एज अ प्रोफेशनल। ठीक है। एज अ प्रोफेशनल। ठीक है। वहां पर इवन लिंक्डइन कोर्सेज ऑफर कर रहा है। ठीक है। ऑन वेरियस कैटेगरी स्टार्टिंग फ्रॉम डिजिटल एडवर्टाइजिंग। अच्छा जी, गूगल गैराज है, अगर आपने गूगल पे सर्च अपना लिखना है, ये मैं आपको बल्कि लिख के भेज दूंगा, आप शेयर कर दें बेशक, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल गैराज पे जाकर आप फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स ले लें स्टार्टिंग के लिए। ठीक है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इट कम्स विद अ सर्टिफिकेशन दैट इज फ्री। Okay, you can add it on your CV as well. That plays out very nicely in the field. ठीक है। और जितने भी इस तरह के कोर्सेज हैं, ठीक है, कोर्सेरा पे चले जाएं, फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ले लें, लिंक्डइन से आप डिजिटल फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ले लें, learn media math. Most importantly, learn media math. Media math is something without that we just cannot go anywhere in media. जब तक हमें पता ही नहीं है कि कितने इंप्रेशन हमें चाहिए, ठीक है, फॉर आवर एड्स टू बी सक्सेसफुल, और मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। बेसिकली मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज हमने आपने शायद मेरे ख्याल से मैम पढ़ा भी होगा, आइडा मॉडल होता है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। ठीक है। ये मॉडल इज द की मॉडल इन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जो कि हम आज तक इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। इफ यू से गिव मी वन थिंग दैट यू आर इनकॉर्पोरेटिंग फ्रॉम योर डिग्री, इट इज आइडा मॉडल एंड मल्टीपल अदर मॉडल्स जो हमने एडवर्टाइजिंग में लर्न किए हैं। ठीक है। बट आर दे बीइंग प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेटेड इन मार्केटिंग प्लान्स? आई डोंट थिंक सो, नॉट हियर इन पाकिस्तान। इंटरनेशनली, सिंस वी आर डीलिंग विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स, so they are very picky about the models they are choosing. Learn and make sure that you know the examples कि आप कैंपेन डिजाइन के अंदर मॉडल्स कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। आप किसी भी ऐसे बंदे को, फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ऐड आता है किसी भी, फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई एम नॉट अ स्पोर्टी पर्सन, ठीक है, मुझे अगर किसी स्पोर्ट्स वेयर का ब्रांड आ जाता है, इफ आई एम नॉट अ स्पोर्टी पर्सन, तो वो ऐड वेस्ट है मेरे लिए। ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेट करें कैंपेन के, KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखें आपके क्या है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, KPIs, ठीक है, जिसकी बेस पे आप अपना ROI कैलकुलेट करें। ठीक है। ROI इज द ओनली थिंग व्हेनेवर आई गो ऑन अ सेल्स मीटिंग,
ठीक है, with any company, with any organization, like यार देखो, if we spend like $15,000 here, ठीक है, what is the ROI I am expecting, ठीक है, then we calculate the ROI on spot, ठीक है, हम calculators खोले बगैर we just give them a rough figure, ठीक है, and that figure is near to perfection and precision, ठीक है, because हम लोगों की calculations अब इतनी fast होगी कि सर if you spend like $15,000, आपको फर्स्ट क्वार्टर में या फर्स्ट फेज में यू विल अर्न लाइक $15,000 फ्रॉम $15,000, ठीक है, देन द प्रॉफिट मार्जिन विल इंक्रीज, ठीक है, थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। कैंडीलैंड की मैं आपको केस स्टडी शेयर कर सकता हूँ, ड्यू की मैं आपके साथ केस स्टडी शेयर कर सकता हूँ, जिसकी हमने कैंपेन्स रन की हुई है, ठीक है, उनके जो ROIs थे दे वर लाइक स्काई हाई, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट इज अ टर्मिनोलॉजी वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। सो और जो जो मैंने प्लेटफॉर्म्स बताए हैं, गूगल गिराज, ठीक है, कोर्सेरा, ठीक है, लिंक्डइन, ये तीनों, just scroll through them, understand your needs, your pick up the courses and learn them, ठीक है। और यहाँ पे ऑनलाइन और बहुत सारा मटेरियल जो कि आपको मिल सकता है, खासतौर पे जिस पर मेरा एम्फेसिस है वो है मीडिया मैथ, लर्न दैट प्लीज। सो Okay, so we have a question from Rimsha. Rimsha, you can also speak out if you want. Yeah, sure, Rimsha. Hello, Sanu. Hello. जी Rimsha बोले. Yeah. So my question was basically that did you already know you wanted to go into this field, or you find out like later? Because मेरा क्योंकि last semester है, so I'm like very confused. Should I go to advertising or creative side? क्योंकि मेरा mostly जो है वो creatives की तरफ ही interest है. Okay, that's a very good question. The thing is कि I started out as a content writer, frankly speaking, ठीक है। I basically, अगर आप मेरे प्रोफाइल देखेंगे तो you'll see कि writing everywhere I was a writer, ठीक है। Started out with the content writing thing, ठीक है, went on one sales meeting from एक agency जहाँ पे मैं priorly काम करता था, like 2 agencies back, let's just say that. There was nobody to present basically the proposal. Yeah, I was sent, instead of the guy who was supposed to go. I went there, presented the proposal, and voila. I was lucky enough to score the client, to back the client. The next few meetings, hit and run work, I went on the meetings. It was pretty exciting. I was meeting, let's just say, brand manager of XYZ company, TK Nestle हो गया, TK for example. So it was very good, TK. That thing, I scored that account for my agency, TK. Then I got interested into sales as well. While I wrote, TK, writing करता रहा, TK, अभी भी करता हूँ, TK. I got interested in sales, TK. Turned out they bumped me to sales after winning like 2 accounts. This is what happens in life, ठीक है। It's a hit and run situation. कभी आपका इंटरेस्ट यहाँ जाता है, कभी आपका इंटरेस्ट वहाँ जाता है। अब मैं इस कैटेगरी पर आकर like after spending like a sizable amount of my professional life, ठीक है, अभी we have a very long way to go, ठीक है। Graduated in 2019, ठीक है। I have decided now कि sales में future है, ये मैंने अपने लिए डिसाइड किया। You don't have to do that, ठीक है। आपको क्रिएटिव साइड पे जाना है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद बाय क्रिएटिव, दैट इज अ क्वेश्चन यू नीड टू आस्क, ठीक है। इफ यू वांट टू गो टुवर्ड्स एडवर्टाइजिंग में आपने किस सेक्टर में जाना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। मीडिया बाइंग में जाना है, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल क्रिएटिव में किस सेक्शन में जाना है, ठीक है, एज अ क्रिएटिव मैनेजर जाना है, अच्छा जी बिल्कुल ठीक, क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव जाना है, ऑब्वियसली क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करते हैं, क्रिएटिव मैनेजर आता है, फिर क्रिएटिव मैनेजर के ऊपर एक बॉसेस होते हैं। क्रिएटिव मैनेजर के पास यही होता है कि उसके पास ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं जिसके थ्रू वो एड्स बनवाता है, ठीक है। बेसिक डिसीजन जो लेता है वो क्रिएटिव डायरेक्टर लेता है, ठीक है। जो कैंपेन डिजाइन, स्ट्रैटेजी, उसकी एग्जीक्यूशन जो क्रिएटिवली वो लेकर चलना चाहता है या चाहती है, वो डिसाइड करता है। देन दे हैंड यू ओवर द प्लान के एग्जीक्यूटेड, ठीक है। वो भी काम क्रिएटिव मैनेजर के थ्रू ही आता है, ठीक है, या उसको हम अकाउंट मैनेजर भी कहते हैं इन वेरियस टर्म्स। तो मुझे विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ आया, ठीक है, कि यार मुझे करना क्या है, ठीक है। इट्स नॉट ऑल ऑफ अ सडन व्हेन आई लेफ्ट द यूनिवर्सिटीज, आई
graduated from the university, I went as a writer. So have I answered your question, Rimsha? Okay, there is another question by Fatma. Fatma, I am unmuting you. You can ask your question. Please. Yes, my question to you is like, which one is a better metric for digital advertisers? For example, is it return on investment or return on ad spend? Okay. Return on ad spend and return on investment, देखें simple सी terminologies हैं. Return on ad spend is better, ठीक है, for people who are running e-commerce business, ठीक है. This is what they use, ठीक है. Return on investment is something that is collectively used, ठीक है. Difference ROAS में और ROI में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है. इनका formulas भी almost same, ठीक है. और the thing is कि but e-commerce people, for example lam.pk, ठीक है, lejao.pk और इस तरह की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, they prefer this model. वैसे भी, और इतना जनरली नहीं यूज होता, वैसे जनरली हम लोगों के साथ ROI पे बात होती है. Being a salesperson, I know I hear ROI more rather than return on ad spend. Any other question? So if there are more questions, students, आप लोग please chat पे लिख दे, or you can let me know. Also, Aman, if you can just tell us a bit about what really goes into these fancy meetings जहाँ पे आपने अपना client score करना होता है, because these are, I mean, again, this is something that you always learn while you are on board. उससे पहले आपको नहीं idea होता, चाहे जितनी presentations class में दे दें. So if you can some give insights on this as well. So this is where the tricky part comes. See, basically जब आपकी कोई भी इस तरह की मीटिंग होती है, so there's a huge team. Nestle पे मैं बात करता हूँ. First of all, let me say it's one hell of a scary team at Nestle. ठीक है, a whole boardroom of people, very senior people. And for example, your senior asks you to take the lead on the presentation or the proposal. And then they talk about all the fancy terms, like I had no idea what an ROI is or ROAS is, okay, because I'm not a business student or a digital marketing student, okay. So hota kya hai ke we just go into the boardroom with all the niceties and all. We have to be well dressed, we have to be present. Or hota kya hai, sabse start mein, if you're an agency, you're just an agency, okay. There are 5 other agencies waiting in the queue, ठीक है, to present their proposal to the client, ठीक है. So आप proposals win कर सकते हैं, अपनी client को win कर सकते हैं through number one, the best. आप उसके लिए करना क्या चाह रहे हैं, पहले आप उसकी weaknesses देखें. SWOT analysis is the key here, ठीक है. आप SWOT बनाएं, ठीक है. आप उसको solution provide करना चाहते हैं, ठीक है. सबसे पहले आप उसको solution provide करना ही क्यों चाहते हैं, ये वो आपसे पूछ सकती है या कर सकता है, ठीक है. कि जी I don't need PPC campaign, for example. That person is sitting in XYZ place, he has billions and billions of dollars available at his disposal, but wo is not ready, she is not ready to listen to you. What do you do, ठीक है. Instead of telling them that it is your need, you ask them about their need. Sir, what do you think, what do you need, ठीक है. मुझसे जब भी किसी ने क्वेश्चन पूछा यार इसके ऊपर ROI क्या आएगा, मैंने उनसे पूछा जी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं आपका ROI डिटरमिन कर सकता हूँ, ठीक है. अगर मुझसे कोई पूछता है जी मेरे ये KPIs हैं, ठीक है, अब मुझे आप इनका ROI बताएं, देन आई कैलकुलेट द ROI, देन जस्ट गिव देम द आंसर. तब भी मैं उनसे फर्दर क्वेश्चनिंग करता हूँ. सेल्स मीटिंग में बोलने से ज्यादा, ठीक है, पहले आप क्वेश्चंस पे ध्यान करें तो बेहतर रहता है, ठीक है. It's like knowing their need, determining their personalities, ठीक है. It's not like कि आप just go out with all your knowledge, and because there are people who know things more than us, ठीक है. Obviously they are seniors, they are more experienced, they have more knowledge, so they can grill you at any point, so be ready for that. So it's not a big problem, ठीक है. When somebody is asking you, cool है, if you know the answer, best है. Don't ever try to oversmart a client, ठीक है, because they are the client, ठीक है. They will oversmart you
instantly. Even if they are wrong, they are right because they are clients. Okay, so be adaptive, very adaptive. ठीक है, you just cannot you will definitely wear dhoti walas, दाढ़ी वाला, ठीक है, दूध वाला, and every other sort of client. ठीक है, तो the being an advertiser, मैं अपना ego उधर छोड़ के आता हूँ. I'm very egoistic in terms of my campaigns and my performance, but not egoistic in terms of anyone. ठीक है, so that's pretty much it in terms of this question. तो होता ये है कि वो आपको ग्रिल करते हैं अच्छी तरह से, because they want to know कि if they are going to give you the campaign, if you are eligible enough or not. So get your numbers straight, get your facts straight. ठीक है, learn before you can speak. That's it. Yep. Another thing, is it a level playing field specifically for like newer advertising agencies who are, who have just formed? Because what we know कि जो ये Group M है या Starcom and all these, big names, they have been around for a few years now. And of course, there are fancy agencies over there as well. But we know that digital में तो खैर थोड़ा बहुत like if you are performing, then you are performing, doesn't really matter. But overall, what is your own viewpoint about this? कि हमारे यहाँ अभी advertising agencies में ये कोई level playing field मिली हुई है नई एजेंसीज के लिए भी कि वो भी अच्छा क्लाइंट बड़े एमएनसीज जो है वो ग्रैब कर सकते हैं, या इट विल टेक सम टाइम टू चेंज? That's a very good question, ma'am. The thing is कि being in the agency, sorry, in this industry, I can clearly say कि कोई भी नई एजेंसी अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट नो व्हाट आर यू डूइंग. ठीक है, यू कैन विन एनी क्लाइंट. ठीक है, I know people, they are very good friends. There is this agency called Vakra Studios. ठीक है, they are very good friends of mine. ठीक है, but whenever we talk about programmatic advertising, they have no clue what I am talking about. ठीक है, they have clients like Hush Puppies. Hush Puppy is my client as well. ठीक है, and but the thing is कि whenever we talk on programmatic, they are like यार, this is way above. And the other thing is that the client is not ready to spend on something, so you don't pitch that thing to that client. ठीक है, but yes, tell them the idea कि यार ये है, हम लोग आपको ये ऑफर कर रहे हैं. If you want to go ahead with it, ठीक है, I'm just gonna make you a proposal. ठीक है, and you go ahead with it. Any agency can win any client as long as if you as long as you have the expertise. ठीक है, the client actually needs. ठीक है, even if you are creative agency, if you are digital agency, digital marketing agency, जिस तरह की भी हैं आजकल, you don't need a lot of rooms or fancy clothes or fancy XYZ things. जैसे Group M है, Starcom है, they are hundreds and like 40 साल पुरानी, 40 years हो गए हैं इनको, इससे भी ज्यादा हो गए हैं, 50 years से above हो गए हैं. ठीक है, Nielsen एक डेटा कंपनी है. ठीक है, we all know that. ठीक है, like I know them like 100 years, 90 years तो कहीं नहीं गए Nielsen के. ठीक है, so yes, Coke is something. अगर आप Coke को as अपना client बनाना चाहते हैं, तो पहले तो ये समझें कि यार Coke में आपने मिलना किससे. ठीक है, डिटर्मिन करें कि जी who is the right person जिससे मिलना है हमें. ठीक है, तो the first and the foremost person you ought to meet is the assistant brand manager of that relevant company. ठीक है, Coke के बहुत सारे products हैं. ठीक है, अब आप फॉर एग्जांपल, मैं माउंटेन ड्यू मेरा क्लाइंट है. ठीक है, तो मैं माउंटेन ड्यू के ब्रांड मैनेजर को जानता हूँ. ठीक है, असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर को जानता हूँ, मैं मार्केटिंग हेड्स को जानता हूँ. ठीक है, सो हु इज द राइट पर्सन जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर इज द राइट पर्सन. ठीक है, दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि बी ऑन लिंक्डइन, कनेक्ट विद दीज पीपल, एंड you just don't have to go all fancy on them. You just have to be very friendly and very open. ठीक है, and discuss with all your knowledge. ठीक है, and the best way to score a client is to show your presence. The best way. ठीक है, every weekend I send WhatsApp to all my clients, you have a great weekend. ठीक है, this actually just keeps me in their mind. ठीक है, whoever they are, be it Unilever. ठीक है, somebody sitting in, let's just say, Golden Pearl, it's a like cosmetic brand or something. ठीक है, or any other client. ठीक है, banks हो गए. ठीक है, show your presence. ठीक है, make your presence known with your actions. I always say that, and that's it.
All right. Just a parting question. So Aman, I'm sure you have been like working for like 2-3 years now. So, Yes, ma'am. according to you, what has been the best campaigns that you have executed, like, or your company has executed, जो आपको लगता है कि you were able to achieve the target that you were set out to achieve? Okay. So ma'am, there were multiple campaigns that we ran. ठीक है, अभी recent most पे आप देख रहे हैं तो चीटोस की X and O's वाली campaign, ठीक है, उसका एक मैं आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ इन्हीं पे ग्रुप में, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल। That is called an interactive ad. ठीक है, एड्स की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, बहुत सारी फॉर्म्स हैं, ठीक है। वी नीड टू लर्न एड फॉर्म्स एज वेल। कि हमने अभी रिमशा ने आई बिलीव मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि शी वांट्स टू गो इनटू क्रिएटिव, तो रिमशा दिस इज फॉर यू। इंटरैक्टिव एड्स क्या होते हैं, ठीक है, जिससे आप कस्टमर को इंगेज करते हैं। जिसके पास भी ये एड आप देख सकते हैं अपना एड ब्लॉकर ऑफ करके काइंडली, देखो बाकी जितने भी एड फॉर्म्स हैं मेरे पास बहुत सारी कैंपेन्स हैं जो कि मैं कह सकता हूँ कि आई हैव बीन वेरी सक्सेसफुल विद देम, ठीक है। आप लोग, मैं अपने वेबसाइट्स भेज रहा हूँ अपनी कंपनी दोनों की, आप लोग इनको व्यू कर सकते हैं एंड यू नो जस्ट विजिट देम, ठीक है। वहाँ पे जो हमारी क्लाइंट्स हैं आप उनको देखें, ठीक है, वहाँ से आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा कि यार which one by far, because इतनी सारी हैं कि I just cannot say कि कौन सी बेस्ट थी। मेरे लिए नज़दीक अभी सबसे अच्छी है चीटोस वाली, it was very fun. All right, that's great. Acha, also, acha, वैसे we were expecting more questions, but the thing is, I have locked the meeting due to the hacking incident. So इसलिए भी हमारे पास ज़्यादा participants नहीं है. But of course, all these are the students from the PR and advertising class. So questions, अगर आप लोगों के और questions हैं, तो students you can ask. Or else, Aman, if we can perhaps end on the note where you were talking about ke aap apna, you wanted to share your LinkedIn account as well. How we have to connect to you? If any of the students, want to connect to you later on, maybe not now, but Sure. once they will graduate and they would be in need of internships and jobs for sure. Definitely. Basically, I have to launch an internship module here at my agency. Basically, दोनों agencies के लिए. So I will definitely need bright individuals, ठीक है, and definitely will be looking forward to some good presentable people, ठीक है। और ये याद रखिएगा अपना CV जो है ना, उस पर please don't add any activity from any आपकी सोसाइटीज के ऊपर, बिकॉज दैट इज नॉट प्रोफेशनल, ठीक है। आप सोसाइटीज में मार्केटिंग डायरेक्टर रह चुके हैं, प्रोफेशनली इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। वी वांट 1 पेजर CV रिज्यूमे, ठीक है। ये याद रखिएगा कि HR के पास जब CV जाता है और उसके पास दूसरे से तीसरा पेज होता है, वो डस्टबिन में जाता है, ठीक है, प्रिसाइज, ठीक है। आई डोंट वांट टू नो, ठीक है, and no profession wants to know that you were activities coordinator or you were a vice president of FJS, no offense to any society or any other society, ठीक है। We don't want to know that. We want to know that what you have done in the past in the field professionally, ठीक है, even if it is an internship, even if it was a 1-week internship, mention it, ठीक है। Whatever skill you have, develop a set of skill, ठीक है, whatever that skill is, ठीक है। क्रिएटिव में आपको स्किल, अगर आप if you want to be a better creative person, learn software like Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, ठीक है। ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं, इनके ऊपर अपना हाथ सही करें, ठीक है। there are so many technologies out there. Learn to sketch, ठीक है। If you want to be a creative person, be a good sketch artist, ठीक है। And it's not everybody's piece of cake, ठीक है। And not every creative person is a good sketch person, ठीक है। But yes, you ought to know these softwares, ठीक है, because these are the softwares that are going to help you in defining your ideas and making presentation slides and defending your idea. So yeah, and yeah, connect with me on LinkedIn. My name is Malik Aman Aziz. I am sharing a link.
in the chats. Okay, with that, I think we have come to the end of the session. Thank you so much, Aman, for your time, and thank you for introducing us to all these new concepts. And I mean, hopefully, we'll also talk about it later on in the class as well. And once we are back on campus, we are definitely going to invite you so that you can visit the university and talk to us. So thank you so much for your time, and thank you everyone who participated in this event, all the people from MCOM 400 and the FGS people. So thank you for your time, and I see you now in the next class. Definitely. Thank you, ma'am. Thank you, everyone, and stay connected. Take care. Stay safe. थोड़ा सा distance maintain करें यार. And please be well. Wear mask. ठीक है. Whatever you guys can do, you can do it. Like I commend all the teachers who are just taking these classes online as well. कि यार like if you ask me, मैं अभी तक Zoom meeting पे इतना आदी नहीं हुआ, but it has been a year. I have to. So I'm a salesperson. I'm a face-to-face sort of a person. So I'm talking to a computer right now, to my laptop right now. It sounds weird, but it is what it is. So this is the new life. Okay? So stay safe, stay healthy, and stay well. Thank you very much. Thank you.